Okay, so in the previous class we have already discussed your belt and chain, which are the mode of power transmission from one shaft to other. And in this class we will discuss gear. Okay, very important part. And here you have to please focus here because we are actually going to discuss a very important part of this subject. Okay, you can see now the slide is visible. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, sir. let's share with you. These are the Yes, theories sir. portion written. Let I share with you other one. Just wait, I want to bring that one into the exact form. I'm unable to get it. Why? What happens? Oh, this one I have to close, I think. Okay. Okay. I think it is visible, I think. Yes, sir. Visible. Okay, Yes, you sir. can see Yes, Yes, sir. sir. these are the different types of gears available. Yes or no? Yes, sir. But we are not able to mark it or name it. Yes or no? There are all these types of gear. I think you have already been seen it in your day-to-day life. Most of this type gear you have already seen. This one, okay, and this one you might not see till now. This one actually these are used in industry. So let's move on to the next phase. Okay. So what you find in this slide? What you find? Unable to see actually ये आपका स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा है क्यों पता नहीं. Just wait, let open it again. Just wait, I'm opening. Oh, that means I have to close this one, I think. Okay, let it in this way. We will see this one. What you find in this slide? This is the slide where you can find both types of gear. It is internal as well as external gear. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. That means the same arrangement where we can find that internal as well as external gear. Okay. So my objective is to tell you that or show you that you let be familiar with what types of gears available in our day-to-day life. You can easily identify which one is internal and which one is external gear. So let me define this one. In external gear, the teeth are placed on the outer surface. As from the definition, external means your teeth are placed at the outer surface of the gear body.
and pointing outward from the gear center. It is always pointed outward toward the gear center. But whereas in internal gears, teeth are placed on the inner side and pointing inwards. Okay, and the gear towards the gear center. So this is the basic difference between this one. In gears, your gears are placed outer surface of the body and pointing outward, and in inner gear or internal gear, gears are placed or teeth are placed on the inner side and pointing towards the center. So this is the basic difference. Are you able to all identify it or not? Yes, sir. Yes, sir. Move to Yes, the sir. next slide. I think if you just motivate yourself to see some amazing things in this slide, today's lecturer, because many things I have collected only for you to show you actually what are the types of gears available in day-to-day life as well as also in the industry. Okay. So this is the gear. One is called your parallel gear configuration. So why its name is parallel gear? If you can see here, gear, basically as we know from the definition, that gear is used to transmit power between one shaft to other. Yes or no? When distance between them is too small. Yes or no? This is the basic difference between gear mode and belt drive mode. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in gear, it transmits power from one shaft to other when the distance between them is very small. So you can see from this diagram, that is the gear, two gears are there provided in the outer part. That means external gears are provided. And that hole in that point where I put my cursor here, you can see this hole is provided to insert a shaft. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes or sir. no? So now you can see from this diagram, these both shafts are parallel to each other or not? Yes, sir. Yes, sir. Parallel. So when shafts are parallel to each other and they transmit power through gear, this is called your parallel gear configuration. Get it or not? Yes, sir. Yes, sir. Rotating shaft on parallel axis within the same plane. Okay, it's called your parallel gear transformation. Configuration. So let's move to the next one. Another one is that intersecting gear configuration. So what you can find that shaft of the gear, okay, intersecting each other. Yes or no? You can, if you put here a shaft, and here a shaft, it will both intersect with each other. Yes or no? Yes, Are sir. able to see it or not? Yes, sir. Yes. The Yes, sir. gear Yes, sir. shafts are on the intersecting axis with the same plane. And like the parallel configuration, this configuration generally has a high transmission efficiency. यानी कि आपको अगर गियर में पावर ट्रांसमिट करना है विथ हाई एफिशिएंसी, सो यू हैव टू यूज इंटरसेक्टिंग गियर. समझे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. One is your parallel shaft, another one is intersecting shaft. Intersecting gear means you are actually shafts Shafts are are intersecting, you can see. Next one is non-parallel, non-intersecting. Non-parallel, non-intersecting. आप देख रहे हो तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ यूज होता है सर? अरे we will come to that one. Just wait. कहाँ तो यूज होता है वो तो बाद का चीज है. आप पहले समझो कितने टाइप का गियर का जो टाइप से कहाँ से एक्चुअली आ रहा है. एक तो पैरेलल शाफ्ट, एक होता है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, एक होता है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग. आप देख रहे हो तो इस तरह का. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप एक दिन जो गए थे बीएमई लैब में, एक जहां पर देखे थे एक, अरे के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का मॉडल नहीं देखे थे हम जो लैब बैठे रहे हैं उसके राइट साइड वाला लैब में,
वहां पर में डिफरेंशियल लगेगा, वहीं पर ये यूज होता है। आप अगर पूछे तो ये बता रहे हैं। तो फिर आपको gears with non-parallel, non-intersecting configuration have shafts existing in the axis which is cross. Cross means not parallel, but not on the same plane. यानी do not intersect. रहे हो या नहीं? So unlike parallel and intersecting configuration, this configuration generally has low motion and power transmission efficiency. So if you compare with intersecting, आवाज कहाँ से आ रहा है? Please mute your audio. So here in this non-parallel, non-intersecting gear configuration, you will find that it will able to transmit only low motion and its also efficiency is low comparable to intersecting. So ये एग्जाम्पल है आपका स्क्रीव गियर है, वर्म गियर है, हाइपोइड गियर है, ये सब आपका एग्जाम्पल है। हम जो कल पढ़े थे, जो स्क्रीव पेयर आप देखे थे ना, स्क्रीव पेयर में इसी तरह का डायग्राम नहीं था, टीथ नहीं था। तो ये वाला है स्क्रीव गियर, वर्म गियर, हाइपोइड गियर। वी विल डिस्कस वन बाय वन अगेन। सो आज फॉर द शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट गियर, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट गियर, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग एक हुआ। समझे? 3 टाइप का हुआ। अरे समझे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज द स्पॉर गियर। आप देखे हो या नहीं? अरे इसी तरह का गियर देखे हो या नहीं? Yes, sir. किधर देखे हो बताओ? Yes, sir. किधर किधर? Sir, अच्छा की clocks मशीन पे में। सर ये होता है ना? आटा चक्की में होता है। शुगर केन जूस जहाँ आप निकालते हो उधर होता है। सर वॉचेस में भी होता है। हाँ, वॉचेस में भी होता है। और किधर होता है? आपका लिखा हुआ है नीचे, इधर हम लिख दिए हैं तुम्हारे लिए। वाटर यस, दीज आर कंस्ट्रक्टेड विथ स्ट्रेट टीथ कट। ये देखो सब जो टीथ दिख रहा है अब स्ट्रेट कट हुआ है, देख रहे हो या नहीं? Yes, sir. तुम रेस्पॉन्ड करो। Yes, sir. क्या सब दिख रहा है? ये सब हाँ, दिख क्या रहा है। दिख रहा है? इंसर्टेड पैरेलल टू द गियर शाफ्ट। आप ये जो गियर टीथ कट हुआ है उसका जो आपका टीथ जो कट हुआ है ये पैरेलल टू द शाफ्ट, शाफ्ट के साथ पैरेलल होके कट हुआ है या नहीं? Yes, sir. Yes. हाँ। So it allows for a high degree of precision and easier manufacturability. ये जो गियर में ये पूरा एक्यूरेट आपका ये हुआ है और उसका इजी मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। आप जैसे इंटरसेक्टिंग गियर देखे, ठीक है, तो आप ये जो देखे कि नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल गियर है, समझे? जो स्पॉर गियर है या नहीं? डिसएडवांटेज है कि ये जब हाई स्पीड में रोटेट करेगा तो यहाँ से नॉइज प्रोड्यूस हो सकता है, समझे? एंड ऑल्सो स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड ऑन गियर टीथ एंड नॉइज एप्लीकेशन। सो किधर यूज होता है? आपका क्लॉक में होता है। पंप देखे हो या नहीं? उसमें यूज होता है। वाटर सिस्टम में यूज, पंप वाटरिंग सिस्टम। पावर प्लांट में, मशीनरी में, मटेरियल हैंडलिंग में यूज होता है। क्लॉथ वॉशिंग, आपका ड्राइंग मशीन, आपका जो वॉशिंग मशीन में भी जो यूज होता है गियर, वो सब स्पर गियर होता है। समझे रे? देखे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मूव टू द नेक्स्ट गियर। ये कौन सा टाइप का गियर है? देखो, Helical. आप पहले उसको सब देख लो, हम उसका जो थ्योरी रिलेटेड कंटेंट को देखेंगे, समझे? हम तुमको सिर्फ दिखा रहे हैं कौन सा टाइप का गियर कैसे दिखता है। आप स्पॉर गियर देखे तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलिकल गियर और स्पॉर गियर में अंतर क्या है? देखो, इसका इसका टीथ टीथ ओवल Shaft टीथ के ये साथ पैरेलल parallel नहीं नहीं है। है। पैरेलल।
हाँ ये पैरेलल नहीं है, ये कुछ एंगल में कट हुआ है नहीं। Yes, जो sir. एंगल में Yes, कट sir. हुआ है उसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल, समझे। अरे सुनो, जो एंगल में कट हुआ है उसका नाम है हेलिक्स एंगल, इसी के चलते उसका नाम हुआ है हेलिक्स गियर, समझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो नेक्स्ट गियर देखते हैं कैसा दिखता है। ये होता है स्पाइरल विवेल गियर। इस तरह का गियर भी आप देखे होंगे कभी, यूट्यूब हो, कहाँ पर हो, वीडियो हो, कहाँ पर कुछ चीज चल रहा होगा। ये वाला गियर जो होगा वो स्पाइरल विवेल गियर होता है। वो क्या होता है हम भी पढ़ाएंगे उसके डिटेल थ्योरी, समझे। एक स्पाइरल पार्ट है, एक विवेल पार्ट है। वो दोनों में आपका जो ये जो स्पाइरल है, ये देखो ये वाला जैसा है, वो जो बेस में जो गियर बनाया गया है उसी तरीके का है। ये देखो रैक एंड पिनियन गियर, रैक एंड पिनियन देख रहे हो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ये होता है ओर्म गियर। वो डिटेल क्या है हम पढ़ेंगे। स्पॉर गियर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब है। विवेल गियर का देखो, स्पॉर गियर में क्या है, ये सर्कुलर गियर बॉडी है। स्पॉर गियर जो देखे थे सर्कुलर गियर बॉडी है या नहीं, आपको दिख रहा है, नहीं Yes, दिख sir. रहा है तो आप उसको जूम कर सकते हो, ठीक है। एंड स्पॉर गियर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गियर एंड ऑफ मैक्सिमम यूज, ठीक। आप थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट टीथ कॉट ऑन द इंसर्टेड, स्ट्रेट टीथ कॉट और इंसर्टेड पैरेलल टू द गियर शाफ्ट। आप वो मिला या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. यूज्ड फॉर पैरेलल, यूज्ड फॉर पैरेलल एक्सिस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये पैरेलल गियर के अंदर आता है, ठीक। Yes, sir. हाई प्रेसिशन एंड एफिशिएंसी, जो ए साइड में लिखा हुआ है, ए राइट साइड में एक ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, आपको मिल रहा है। आप जी, उसको yes, देख sir. के देखो, जो वो ए मतलब ये स्पॉर गियर का एडवांटेज है, डी स्टैंड्स फॉर डिसएडवांटेज, समझे। Yes. Yes, sir. तो हाई प्रेसिशन एफिशिएंसी, इजी टू मैन्युफैक्चर, आज teeth are caught parallel or inserted in parallel, so it is easier to cut and do not produce thrust। आपका कुछ भी फोर्स एंगल में ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए थ्रस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एट हाई स्पीड एंड हाई लोड, ये मैक्स उसका एडवांटेज है। मगर आपका डिसएडवांटेज है कि ये हाई स्ट्रेस से होगा टूथ, हेलिकल गियर जो देखे तो थोड़ा हेलिक्स एंगल में कट हुआ था उसका टीथ, नहीं Yes, sir. अरे Yes, हाँ या sir. नहीं। Yes, sir. तो ये सर्कुलर गियर बॉडी है, टीथ ट्विस्टेड एट एन एंगल अराउंड द गियर बॉडी। ये भी पैरेलल एक्सिस का कन्फिगरेशन है, अवेलेबल इन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिजाइन का। ये दाएं ऐसे घूम सकता है क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज जैसा, ठीक। आपका जो हेलिकल गियर है सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है। ये आपका कंपेरेबल, आपका वो एक तो चीज हुआ कि स्पोर गियर में आपका नॉइज प्रोड्यूसन होता है, नॉइज प्रोडक्ट होता है या नहीं हाई स्पीड में। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. दूसरा जो गियर ऑलवेज डेवलप होता है, वो पहले जो गियर अवेलेबल होता है उसका लिमिटेशंस को लेके दूसरा गियर डेवलप होता है, समझे। Yes, sir. तो हेलिकल गियर का आप एडवांटेज में लिख सकते हो, जो आपका डिसएडवांटेज का साउंड था, नॉइज था। Noise producing. मगर ये जो क्वाइटर और स्मूदर बनाने के लिए आपका देखो इधर आपका कम एफिशिएंसी आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा, एंगल में कट कर रहे हो, इसी के चलते उसका हायर डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, देख रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. हायर डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी आएगा तो आपका ग्रेटर कॉस्ट होगा या नहीं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। Yes, Yes, sir. sir. Better होगा. Yes, sir. Better तो होगा. आप स्पॉर गियर करेगा थोड़ा एंगल में, तो यानी कि आपका थ्रस्ट यहाँ पर डेवलप होगा, ये जो थ्रस्ट फोर्स है वो डेवलप होगा, देख रहे हो। Yes, sir. आप बिवेल गियर देखो, बिवेल गियर में हम कौन शेप्ड गियर बॉडी देखे थे, यूज्ड फॉर इंटरसेक्ट एक्सिस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका जो पैरेलल गियर शाफ्ट था उसमें आपका आ गया स्पोर और हेलिक्स और हेलिकल,
और वो जो इंटरसेक्टिंग टाइप का था उसमें है बीवेल। सो बीवेल आपका अवेलेबल इन स्ट्रेट स्पाइरल, वो वाला हम डिस्कस करेंगे। ओ सॉरी, कहाँ गया रे? हाँ, बीवेल ये सब हम वो वाला, इसमें भी थोड़ा एडवांटेज है, ये कॉन्सेप्ट गियर बट ये अवेलेबल इन स्ट्रेट स्पाइरल, ओके फॉर्म, वो दोनों में अवेलेबल है, सिंपल है, ठीक है। हाई इम्पैक्ट है, नॉइज लेवल भी आपका आप कंपेयर करोगे तो आपको कम हो रहेगा, ठीक है। स्पाइरल में आप ग्रेजुअल टूथ एंगेजमेंट होगा, लेस इम्पैक्ट होगा, क्वाइट स्मूदर देन स्ट्रेट बीवेल, ओके। आपका अगर आप स्मॉल बीवेल लोगे तो आपका स्ट्रेट बीवेल से वो स्मूथ होगा। आपका जो ओवर गियर है, देखो ओवर गियर कैसा है, पेयर कंप्रोमाइज ऑफ सर्कुलर गियर एंड स्क्रू शेप्ड गियर। देखो याद रखो, ये टर्म हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इसका सर्कुलर गियर और स्क्रू शेप्ड गियर, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। सपोज आपको पूछेगा, आप एक एग्जांपल दो जो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग गियर का, तो आपको लिखना है ओर्म गियर, समझे। And also another one is that this worm gear is in your syllabus, okay, and quiet and smooth ऑपरेशन, सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म, यानी कि वो अपने आप लॉक हो सकता है। लो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, जो देखो इतने सारे नॉन पैरेलल होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली घटेगा, ठीक। आपका एक्चुअली वो सपोज मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये इतना एफिशिएंसी दे रहा है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है उसके कंस्ट्रक्शन में, तो हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं? अरे क्वेश्चन तो आ रहा है या नहीं? तो हमको ऐसा ऐसा सिचुएशन चाहिए, जैसे देखो कोई आप जैसे अभी जो तो टू व्हीलर चला रहे हो, जो कोई कार चला रहा हो, फोर व्हीलर समझो, सपोज एक कॉर्ब रोड आ गया, पूरा शार्प कॉर्ब रोड है, ठीक। आप उसमें जब टर्न करते हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ, वो जब वाइल टेकिंग टर्न, वो क्या होता है, आपका आउटर का स्पीड बढ़ जाता है, इनर का स्पीड घटना चाहिए। अगर वो आउटर का स्पीड ज्यादा बढ़ गया तो वो बाहर चला जाएगा व्हील। इनर का स्पीड अगर आप नहीं कंट्रोल होगा, तो कम नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उलट जाएगा आपका व्हीकल। तो वहां पर एक अरेंजमेंट दिया जाता है डिफरेंशियल, ठीक है। वो क्या करेगा, वो वहां पर स्पीड रिडक्शन करेगा, तो जिधर हमको स्पीड रिडक्शन चाहिए वहां पर स्पीड रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर वो वाला ये वाला गियर यूज होगा, समझ रहे हो, वर्म गियर। Yes, sir. वहां पर लिखा हुआ है लार्जर गियर रेशियो एंड गियर रिडक्शन। आपको देखो वो वाला रास्ते में हमको ज्यादा गियर पे आपको गाड़ी चलाना है क्या, वो कम है, आप सडनली कैसे कम कर सकते हो, उसका स्पीड ज्यादा था पहले, तो तभी ये अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है गियर का, समझ रहे हो। Yes, sir. सो रैक एंड पिनियन, ये सब जो आपका गियर सिलेंडर, ये भी पैरेलल एक्सिस का है। देखो आप जो पूछ रहा था कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन सा टाइप का गियर, आपके लिए अभी बनाया गया है। स्पॉर गियर देखो किधर यूज होता है, क्लॉक में यूज होता है, पंप में यूज होता है, वाटर सिस्टम में आपका वही पंपिंग वाटर सिस्टम में यूज होता है। हाउस होल्ड अप्लायंस आप देखो, हाउस होल्ड अप्लायंस में आप जो भी चीज देखो, इधर देख रहे हो जो आप आजकल जो छोटा जो ग्राइंडिंग मशीन जो हाथ में घुमाने वाला आ रहा है, समझ रहे हो, देखे हो या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, उसमें sir. भी आपका Yes, sir. Yes, sir. स्पॉर गियर यूज होता है। आपका जो वॉशिंग मशीन में होता है, एरोस्पेस एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है, रेलवे में भी यूज होता है स्पॉर गियर, ठीक है। आपका हेलिकल कहाँ यूज होता है, जो थोड़ा एंगल में, वो जहां पर स्पॉर गियर यूज होता है, आप हो सकता है विथ ऑल्सो ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसे आपको बोला था मैंने, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम। विवेल गियर किधर यूज होता है, वही विवेल गियर का भी यूज होता है आपका। ये अगर कोई भी देखो कोई चीज कहाँ पर अगर पैरेलल शाफ्ट तो हमेशा आपको अवेलेबल नहीं होगा पैरेलली, जैसे आप शुगर केन का मिल देख रहे हो, उसमें तो आप जैसा पैरेलल हो सभी जगह, तो हमको पैरेलली पावर ट्रांसमिट नहीं करना है, जब कुछ एंगल में ट्रांसमिट करना है तब आपको यूज करना है विवेल गियर, हेलिकल गियर, सॉरी विवेल गियर, ओर्म गियर, समझ रहे हो। तो बीवेल गियर भी आपका ऑटोमोबाइल में यूज होता है। ओर्म गियर देखो इंस्ट्रूमेंट, लिफ्ट्स एंड एलिवेटर, लिफ्ट जो होता है आपका, लिफ्ट से एलिवेटर जो होता है आपका, उसमें क्या आपका ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, वहां पर स्पीड रिडक्शन चाहिए, इसलिए गियर यूज होता है, जो गियर रिड्यूस करेगा वहां पर होता है ओर्म गियर, समझ रहे। Yes, sir. Yes, sir. और किधर यूज होता है, देखो ये जो रैक पिनियन वाला रेलवे
पूरा डिटेल आइडिया आ गया तो तुमको कि कैसा दिखता है अब? यस सर। यस सर। क्या हुआ रे? चलो वही हम क्लासिफिकेशन ऑफ गियर जो 3.6 दिख रहा है उसको आप देखेंगे। ये सब खत्म हो गया है। चलो गियर देखो, गियर्स दिख रहा है रे? Yes, sir. यस So gears are used for power transmission। अरे पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है या नहीं और किसी काम के लिए? ठीक है, तो Yes, sir. हाउ इट इज ट्रांसमिट पावर थ्रू दैट एंगेजमेंट ऑफ टीथ, जो टीथ के कांटेक्ट होगा तब जाके पावर ट्रांसमिट होगा। सो द टू गियर ट्रांसमिट मोशन बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में आपका जैसे चेन और स्प्रॉकेट के बीच कांटेक्ट हो रहा था उसी तरह गियर में कांटेक्ट होता है, समझ रहे हो? सो गियर Yes, इज sir. ऑल्सो ए पॉजिटिव ड्राइव, क्योंकि इसमें भी आपका स्लिप नहीं होगा, समझ रहे हो? जैसे बेल्ट में स्लिप होता था, आपका चेन में स्लिप होता था क्या? नहीं होता था। आपका No, sir. चेन में वो स्लाग और लूज हो जाता था, ठीक है, वहां पर कंटैक्ट पॉइंट रहता है, कंटैक्ट रहता है, तो इसलिए वो जैसे पॉजिटिव ड्राइव था, ये गियर आपका पॉजिटिव ड्राइव है, समझे? So the drive between two gears can be represented using a plain cylinder or disc 1 और disc 2। आप देखो गियर में आप एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो दो गियर आपको दिख रहा है इधर, ये जो ये 1 और 2, ये वाला सपोज ये आप देखो ये दो शाफ्ट है, उसमें लगाया गया है दो गियर। तो आप हमेशा याद रखो दो गियर आप सब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, समझे? अरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे या सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे? यहाँ पर Opposite कौन सा direction। डायरेक्शन क्या है? Opposite. ऑपोजिट। सो वो जो कांटेक्ट जो टेंजेंट पॉइंट है जहां पर टच करता है वहां पर कितना वेलोसिटी होता है वो अभी निकाला है, W1 R1 ओमेगा 1 R1 सॉरी ओमेगा 1 R1 एंगुलर वेलोसिटी विथ R1 रेडियस, इट विल गिव यू योर टेंजेंशियल वेलोसिटी। मूव टू द नेक्स्ट वन। सो अब क्या होगा देखो, आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी पी जो होता है वो V1 R1, ये गियर के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी जितना होगा गियर 1 के लिए, गियर 2 के लिए भी वही होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, या नहीं? यस। Yes, तो sir. आप अगर उसको कंपेयर करोगे तो आपका ओमेगा 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2πN/60। अरे ओमेगा 2π1/60 होता है या नहीं? यस सर। एंगुलर Yes, sir. वेलोसिटी इक्वल टू 2πN/60, तो हम वही लिखे 2πN1/60 R1 2πN2/60 R2। आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, N1/N2 इक्वल टू R2/R1। सो N2/N1 इक्वल टू, आप देखो सिंस पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ। आपका देखो हम आगे उसको देखेंगे, आपका देखो ये उसका पिच सर्कल, इसका डायमीटर जितना होगा उसमें उतना नंबर, आप देखो ये कैसे, कहाँ गया रे? हाँ, पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर इज प्रोपोर्शनल टू टीथ, कितना उसके ऊपर टीथ रहेगा। अब टीथ जो कट होके जो ग्रुप बना जाता है ना उसको टीथ बोलते हैं। अब हम उसका टर्मिनोलॉजी जब पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे, तो आप इसको याद रखो, ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू आपका रेडियस जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है टीथ के साथ। सो N1/N2 नाउ बिकम्स R2/R1 प्रोपोर्शनल होता है टीथ के साथ, सो इट बिकम्स T2/T1। आप देख पा रहे हो या नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो गियर को चलो डायरेक्ट, ये तो सब ये सिंपल डेफिनेशन था कैसे गियर में कांटेक्ट होता है। हाँ, इसके बाद आए, अभी देखो गियर समझे तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ गियर देखो। जैसे हम बोले थे पैरेलल शाफ्ट था, अभी आप ये इमेज से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा नहीं? दो शाफ्ट देखो, दो शाफ्ट पैरेलल टू ईच अदर और नॉट?
Yes, sir. डायग्राम Yes, sir. वन Yes, sir. देखो, अभी दोनों जो गियर है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? Opposite Opposite direction. direction. Opposite अपोजिट direction. डायरेक्शन में, वेरी गुड। आपका जो ये होता है, आप देखो फिगर ए जो होता है एक्सटर्नल मेशिंग होता है, वो बाहर दो गियर कंटैक्ट करता है, और जो सेकंड फिगर है वो इंटरनल मेशिंग है। हम तुमको जो एक स्लाइड दिखाए थे वो दोनों एक ही पार्ट में था। अभी अभी समझे तो? Yes, sir. हाँ, आप ये देखो जो लाइन कांटेक्ट है, जहां पर कांटेक्ट होता है गियर टीथ को, आपका जो स्पॉर गियर होता है और एक जो रैक होता है, इसको स्पॉर रैक एंड ये पिनियन होगा। तो इसको कब आएगा, आप देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। आपका जब गियर का मेश एक्सटर्नल होगा, यानी कि एक्सटर्नल मेशिंग होगा, एंड वन डायमीटर ऑफ वन गियर बिकम्स इनफाइनाइट। अब हम जो बोल रहे हैं सुन पा रहे हो? इफ द गियर mesh externally and diameter of one gear becomes infinite, the arrangement becomes spore rack and pinion। और वे हम उसको भी अलग टर्म से बोल रहे हैं बार बार, रैक एंड पिनियन, आप सुने होंगे बहुत बार। सो रैक एंड पिनियन जो होता है ये एक गियर मेशिंग होता है, जिसमें वो जो गियर मेशिंग होता है वो एक्सटर्नली होता है। और गियर मेशिंग कब होगा, जब दो गियर आपस में कांटेक्ट में होंगे। तो उसी में जो दो गियर कांटेक्ट में होंगे उसमें से एक गियर का डायमीटर इनफाइनाइट जब होगा, तब हम जाके बोलेंगे कि ये रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट है। सो ये डायग्राम आप देखो, ये डायग्राम में देखो एक गियर का डायग्राम, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अरे ठीक से समझ रहे हो या नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो अभी चलो अभी हेलिकल गियर देखते हैं। हेलिकल गियर जैसे स्पॉर गियर था, ये भी पैरेलल शाफ्ट गियर है या नहीं? Sir, parallel. Yes, sir. हाँ, पैरेलल Yes, आप sir. तो देख के Yes, sir. मगर इधर जो डिफरेंस है कि स्पॉर गियर में आपका टीथ जो कट हुआ था वो पैरेलल था शाफ्ट के साथ, इधर ये थोड़ा शाफ्ट के साथ इंक्लाइंड कट हुआ है, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो हम जो अभी बोलने वाले हैं, इन हेलिकल गियर द टीथ मेक्स एन एंगल विथ द एक्सिस ऑफ द गियर व्हिच इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। तुमको पहले भी बोला था मैं। So meshing of gears have same helix angle, but its layout is in opposite sense. Okay, आपका ये देखो, आप यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू टीथ ऑकर्स एट ए पॉइंट ऑफ लीडिंग एज, यानी कि एज के ऊपर आपका कॉन्टैक्ट होता है, इसीलिए आपका फर्स्ट रिजल्ट होता है, ठीक। एंड आपका जो ये कहाँ होता है, एक लीडिंग एज पे होता है, इसलिए इसका नॉइज भी रिड्यूस होता है। ये हुआ हेलिकल गियर। सो डबल हेलिकल गियर क्या होता है, देखो ये अगर एक साइड में दिया गया है उसको आप दो साइड में कर लो। दो साइड में मतलब इसी तरह का कर लो, एक साइड में इधर एक साइड में उधर, ये फ्रंट व्यू। समझ रहे हो या नहीं? आप पेयर ऑफ हेलिकल गियर इज इक्विवेलेंट टू योर डबल हेलिकल गियर। अगर देखो आपका एक सवाल आ सकता है कि हेरिंग बोन गियर क्या होता है, वो डबल हेलिकल गियर को हम समझे रहे। Yes, sir. किधर गया रे? हाँ, डबल हेलिकल गियर, ये सब गया आपका पैरेलल शाफ्ट गियर। समझे या नहीं? पैरेलल शाफ्ट गियर में स्पॉर गियर पड़े, हेलिकल गियर पड़े। अभी इंटरसेक्टिंग शाफ्ट देखो, ये शाफ्ट दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं? अरे कर Yes, sir. रहा है Yes, या sir. नहीं? कर तो रहा। Yes, sir. motion between two intersecting shaft is equivalent to ruling of two conical fractions from kinematical point of view। इसमें देखो क्या हुआ है,
एक होता है स्ट्रेट विवेल गियर, एक होता है स्पाइरल विवेल गियर। तो स्ट्रेट विवेल गियर में आपका जो गियर जो कट होता है, टीथ गियर का टीथ जो कट होता है वो स्ट्रेट रहता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है स्ट्रेट विवेल गियर में, अगर ये जो टीथ जो कट हुआ है ये थोड़ा आपका स्पाइरल होगा, थोड़ा आपका जैसे आपका जो आर्क जैसा दिखेगा, तो वो होता है स्पाइरल विवेल गियर। उसे इतना ही डिफरेंस है। तो these gears have straight teeth and which are radial to the point of intersection। अब देखो जहां पर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है वो रेडियल है, ठीक। द टीथ vary in cross section throughout their length। जनरली दे हैव टू कनेक्ट शाफ्ट एट ए राइट एंगल। अगर दो शाफ्ट आपका राइट एंगल में है, पावर ट्रांसमिट करना, तब तो आप तो शाफ्ट को तोड़ नहीं सकते। आप ये दो विवेल गियर को आप अटैच कर लो, वो पावर ट्रांसमिट करेगा। इसको भी मीटर गियर बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल में कंटैक्ट करता है इसलिए इसको मीटर गियर बोलते हैं। अब देखो ये वाला गियर का टीथ और इधर का गियर का टीथ देखो, जैसे बोला गया था ये थोड़ा इंक्लाइंड है, नहीं? अरे वो वाला स्ट्रेट था, ये थोड़ा इंक्लाइंड है या नहीं? Yes, sir. When the teeth of Yes, a sir. bevel gear are inclined at an angle to the face of the bevel, these are known as spiral bevel gear। ओके, बाकी इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं। ये हो गया पूरा डिटेल उसके बारे में, ठीक। अभी चलो देखते हैं आपका क्रॉस्ड हेलिकल गियर और स्पाइरल गियर। वही वो तो हो गया, वही उसी तरह का दिखता है सब। वर्म गियर तो है, वर्म गियर आपको वो जो था ठीक था, वो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, ये वाला हाइपोड गियर। सो ये जो गियर टर्मिनोलॉजी है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। म्यूट करो। ये पिच सर्कल डाया एक पॉइंट होगा, पिच होगा एक, तो पिच होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल। हाँ, यहाँ पर देखो हम बताते हैं आपको एक एक करके। ये देखो, ये आपका गियर जैसे दिखता है या नहीं दिखता है? तो Yes, sir. अरे देख, ये टॉप लैंड है, टॉप लैंड देखे, टॉप लैंड का जो विड्थ है उसको फेस विड्थ, आप टॉप लैंड से शुरू करो। गियर का जो टॉप पार्ट है, टीथ का टॉप पार्ट से शुरू करो। टॉप लैंड ये है, उसका जो थिकनेस है उसको फेस विड्थ बोलते हैं। समझे? अरे समझे या नहीं? Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. बेस में जो विड्थ है इसको स्पेस विड्थ बोलते हैं। जो दोनों टीथ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको स्पेस विड्थ बोलते हैं। फेस विड्थ क्या है? जो फेस का भी विड्थ है। अभी स्पेस विड्थ क्या हुआ? दो टीथ के बीच में जो विड्थ हुआ, जहां पर कर्सर मूव कर रहा है। देखो गियर का आउटर सरफेस से लेके दूसरे गियर को आउटर सरफेस को इसको बोलते हैं सर्कुलर पिच, और पिच ऑफ द सर पिच इसको बोलते हैं। ये लिखा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन और अलोंग द पिच सर्कल। ये पिच सर्कल के बीच में डिस्टेंस जो है, ये वाला सर्कल जो अभी आपको दिख रहा है ये वाला पिच सर्कल है। ये पिच सर्कल के बीच द डिस्टेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द कंजिक्यूटिव होगा, उसको बोलते हैं, वो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज कॉल्ड योर सर्कुलर पिच। समझ रहे हो? अरे समझे या नहीं? Yes, sir. आप Yes, sir. Yes, sir. दो टीथ में जो भी पॉइंट लो अलॉन्ग पिच सर्कल डाया, वो पॉइंट जो फर्स्ट टीथ में जहां पर पॉइंट चूज किए, दूसरे टीथ मतलब आप एक टीथ छोड़ के दूसरा वाला टीथ नहीं है, कंजेक्यूटिव टीथ में जाना है। और जो पॉइंट इधर फर्स्ट टीथ में दिए उसी के कंजेक्यूटिव टीथ में वही पॉइंट आप फाइंड आउट करो, जो डी। समझे? ये है आपका फॉर्मूला। डायमेट्रिकल पिच वही उसी हिसाब से बाहर निकलेगा, वो पी सी है, ये पी डी है, टी बाई डी आएगा एक्सप्रेशन। ये होगा आपका नंबर ऑफ टीथ, इसके ऊपर कितना टीथ है, कितना नंबर ऑफ टीथ है, इसका रेशियो को आपको बोला जाता है डायमेट्रिकल पिच। ओके, एक होता है सर्कुलर पिच जो हुआ आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्यूटिव पॉइंट्स, sorry, 2 points on the consecutive teeth, okay, in the pitch circle is called your circular pitch।
ओके। और ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला जो डायमेट्रिकल पिच हुआ कि रेशियो बिटवीन और टीथ टी बाई डी। तो आप अगर एक रिलेशन निकालोगे डायमेट्रिकल पिच और सर्कुलर के पी, आप एक पाई डी बाई टी हुआ था नहीं, तो उसमें आप अगर डी डिवाइड करोगे तो ये आपका रिलेशन आया पी सी इंटू पी डी इक्वल टू पाई। ओके। तो आप इधर देखो पी सी हुआ है आपका पाई डी बाई टी, मगर पी डी हुआ टी बाई डी। टी बाई डी को अगर बीच डिवाइड करोगे तो उसका मीनिंग सेम रहेगा, तो पाई बाई पी डी। सो पी सी इंटू पी डी इक्वल टू पाई। एबल टू गेट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो रिलेशन बिटवीन पीच सर्कल डाया एंड डायमेट्रिकल पीच पूछेगा एग्जाम में, तो आपको लिखना है पी सी इंटू पी डी इक्वल टू पाई। अगर एक एक बार भी पूछ लेता है व्हाट इज डायमेट्रिकल पीच। चलो नेक्स्ट टर्म्स क्या है? नेक्स्ट टर्म है मॉड्यूल। मॉड्यूल जो है वो पीच सर्कल डायमीटर का ए, अरे सुन पा रहे हो? सब सुन पा रहे हो? Yes, sir. सर अभी Yes, कट sir. गया था। Yes, sir. Yes, sir. सो मॉड्यूल ये है कि आप पीच सर्कल डाया अभी देखे, सॉरी डायमेट्रिकल पीच देखे या नहीं? डायमेट्रिकल पीच है टीथ बाई डायमीटर, मगर आपका मॉड्यूल जो है उसका उल्टा है, यानी कि उसका प्रॉपर रेशियो ले लो। मॉड्यूल होता है आपका डी बाई टी होता है, वो वाला टी बाई डी होता है, ये डी बाई टी होता है। समझे या नहीं? देखो कितना माइनरली कनेक्टेड। आप अगर इधर उधर थोड़ा हो जाओगे तो भूल जाओगे, इसका डेफिनेशन उधर लिख के आ जाओगे। मॉड्यूल है योर मॉड्यूल इट योर पीसी बिकम्स पाई इनटू एम। समझे? तो एक्चुअली ये दोनों में आपको ये सिर्फ डायमेट्रिकल पिच, सर्कुलर पिच एंड ऑल्सो ये मॉड्यूल आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझे? ये वाला डायग्राम थोड़ा बना लेना है नोट्स में, और टर्मिनोलॉजी में ये 3 4 5 3 टर्म आपको एटलीस्ट लिखना है। समझे? फेस क्लैंग ये तो सब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बाकी ये तो बहुत सारी चीज। तो आप एक काम करते हैं, हम गियर जो आपका मोड ऑफ पावर ट्रांसमिशन था, आप हम उससे आधा डिस्कस किए हैं, यानी कि व्हाट इज गियर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गियर बेस्ड ऑन शाफ्ट, ओके, हाउ दैट शाफ्ट्स आर अरेंज्ड, ओके, parallel intersecting and non parallel non intersecting, and we have already covered also gear terminology, what are the important terms you can find in gear part। okay, सो ये हो गया आपका टोटल। और अगले क्लास को हम पढ़ेंगे गियर ट्रेन। गियर ट्रेन कैसे फॉर्मेशन होता है? जब आप एक स्पोर गियर पढ़े, अरे समझे आप, जो स्पोर गियर देखे वो दो शाफ्ट के बीच में जो आपका गियर टीथ कट होता है पैरेलली, तो उसको बोलते हैं पैरेलल गियर। आपको अगर सपोज ज्यादा पावर ट्रांसफर करना है तो आपको नंबर ऑफ गियर को कनेक्ट करना है, ज्यादा नंबर ऑफ गियर, अरे मोर देन वन गियर आपको कनेक्ट करना है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फोर गियर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ गियर इज कॉल्ड योर गियर ट्रेन। आप उतना याद रखो। हम तो गियर जान ले, जाने कितना क्या है, व्हाट इज गियर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गियर, व्हाट इज गियर टर्मिनोलॉजी। सो व्हेन मोर द नंबर ऑफ गियर्स आर कनेक्टेड इट विल फॉर्म गियर ट्रेन। सो कितना टाइप का गियर ट्रेन होता है? सिंपल, कंपाउंड और जो हेलिकल वाला, ये सब, सॉरी जो एपिसाइक्लिक, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। समझे? अगले क्लास को इसको पढ़ेंगे, तब गियर खत्म होगा। अभी इसको अभी आप देखो, ड्राइविंग गियर, ड्रिवेन गियर क्या होता है? द गियर क्लोजेस्ट टू द पावर सोर्स, जो गियर आपका पावर सोर्स के पूरा आसपास रहेगा, जैसे इंजन के पास जो गियर रहेगा वो वाला है, एंड अटैच टू द ड्राइविंग शाफ्ट। एक तो ड्राइविंग शाफ्ट के पास रहेगा तो आपका ये होगा ड्राइविंग गियर। हाँ, एंड व्हाट इज ड्रिवेन गियर? ड्रिवेन गियर जो होगा ये ड्रिवेन शाफ्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है, वो कनेक्टेड रहेगा आपका ड्राइविंग शाफ्ट के साथ। तो अभी आप जो बाईसाइकिल चलाए हो, आप मुझे बताओ कौन सा ड्राइविंग गियर है और कौन सा ड्रिवेन गियर है?
बाईसाइकिल में कौन सा ड्राइविंग गियर है, कौन सा ड्रिवेन गियर है, और कौन सा ड्राइव यूज होता है? अरे नहीं बता पाओगे या गूगल सर्च करके बता रहे हो? सर रैक या पिन गियर? वो तो चेन ड्राइव है। हम पूछे कि वो कौन सा आपका। पीछे वाला ड्रिवेल है। हाँ, वेरी गुड। एंड दिस फ्रॉम पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ड्राइविंग टू ड्रिवन थ्रू ए चेन ड्राइव, नहीं? यस सर। तो इसी तरह का आप जो डे टू डे लाइफ में जो चीज सब देख रहे हो, आप जो अभी जो सीख रहे हो, ठीक है, उसका अगर आप यूटिलाइज करोगे, उससे देख के सीखोगे, आपका तो बाईसाइकिल मोटरसाइकिल में भी जो गियर यूज होता है, हाँ, जो इंजन के पास रहेगा वो ड्राइविंग होगा, जो थोड़ा दूर रहेगा वो ड्रिवेन होगा, समझे? तो इसी हिसाब से आप अपना मोटरसाइकिल का भी निकाल सकते हो। आप कार भी देख रहे हो, कार चल जब कार में भी देख सकते हो आपका सब जो ऑटो व्हीकल होगा। आप जी यहाँ पर भी देख सकते हो, जो आप जैसे शुगर कैन मिल बोले कि जहाँ पर भी सब जगह पर आप जो सब सीखे हो उसको आप यूटिलाइज करोगे, तब जाके आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो आप अगर ये क्लास में पढ़ लिए बाकी सब भूल जाओगे तो कुछ फायदा नहीं। बताओ रे, अटेंडेंस बताओ। अरे हाँ हाँ, कल तुम भेजे थे रे, कुमार धनंजय, एक कुमार चिदम्बरम, क्या था नाम? चिदानंद। चिदानंद सर, कुमार चिदानंद। तो मना कुमार चिदानंद कल थे क्या? नहीं नहीं, वो थे, मतलब और सब्जेक्ट का था, वो कल दे पाएगा हाँ सर? हाँ हाँ, दे पाएगा। वही ठीक, वही टीचर को पूछ। बोलो, जाके एडिट करके कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ए देखो रे, इधर देखो रे, कोई एक देखो, हम जो दे रहे हैं वो प्रेजेंट है या नहीं आज? दीपक बेहरा है क्या? आलोक कुमार नहीं है। नहीं है सर। दीपक कुमार नहीं है। देखो इसमें से कोई कौन नहीं है, दो तीन एटलीस्ट देखो, सब जो ज्वाइन किए हैं स्टूडेंट। नहीं है सर। नहीं है। अमित कुमार नहीं है, अरिजीत भुइया, अरुण हरिजन तो नहीं है, नहीं आता नहीं है। है सर। आशुतोष शर्मा नहीं है, चिन्मय महांति नहीं, विकास गौड़, चिन्मय, विनायक हरिचंदन, विप्लव